नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया से हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी को 20 नवंबर या इससे पहले डिटेन किया गया है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कैलिफोर्निया पुलिस ने औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने भारतीय एजेंसियों से बातचीत की है। बताया जा रहा है कि गोल्डी को भारत भेजा जा सकता है। गोल्डी बराड़ के खिलाफ पहले ही 2 पुराने केसों में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। वो कुछ दिन पहले ही कनाडा से राजनीतिक शरण के लिए कैलिफोर्निया भागा था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गोल्डी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि गोल्डी को जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। मैं तो हाले मैनेजर स्टेटमेंट का फिर ही दे सकदा जे किसी ऑफिशियली प्रशासन वालों सरकार वालों कोई मैनूं इन्फॉर्मेशन दी जाऊगी। हाँ, प्रैस के माध्यम तो जरूर पता लग रहा है तो थोड़ी मन नूं संतुष्टि मिलती है जे परमात्मा करे खबर सच्ची होगी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚੁਭਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। देखो जी, मैं जितों तक मेरी पुछगिछ का सवाल है, पुछगिछ तो जिवें पुलिस की होनी चाहिए उवें नहीं, क्योंकि कोई गल सामने नहीं आ रही हाले तक। जे पुछगिछ होई हुंदी जिस तरह दोषियों के रिमांड लए जाते हैं, जिस तरह उन्होंने पुछगिछ एजेंसियां करदियां ने, आपां भली भद जानते हैं, पर उस तरह पुछगिछ नहीं हुई। हुण जिवें मेरे केस की ला लईए आपां प्रितपाल ने करी है और प्रितपाल दियां सामने सारियां गल्लां आ गईयां तो ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਘਮਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਵੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ? ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਆਏ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੋਲਡੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਕਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹਿੰਮਤ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਾਂ BMW ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। गैंगस्टर, तो गैंगस्टर पैदा करने वाले कौन थे? गैंगस्टर पैदा हुए अकाली और भाजपा की गवर्नमेंट में, उनको पनाह दी, बढ़ावा मिला कांग्रेस की सरकार में, कैप्टन की सरकार में। अकाली और भाजपा की सरकार में जेल ब्रेक होती रही कि हाई सिक्योरिटी जेल ब्रेक हो गई, इतने कैदी भाग गए। और कांग्रेस की सरकार में शरेआम एक SHO अपनी बेटी की इज्जत बचाने बाजार में मार देगा और उसकी छाती पर
उसके सीने पर पांव रख के अपने आकाओं के नारे लगाए कि फलां फलां जिंदाबाद। हमने आते ही गन कल्चर पर, गैंगस्टर कल्चर पर रोक लगाना शुरू किया। बहुत से गैंगस्टर पकड़े गए और अभी आज सुबह की न्यूज़ है, जो कि कंफर्म न्यूज़ है, मैं बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट ये बता रहा हूं कि जो कनाडा में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बैठा था जो सब गैर सामाजिक कार्रवाइयां करवा रहा था, पैसे भेज रहा था या कुछ भी, गोल्डी बराड़, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। हम पंजाब की सोशल बॉन्डिंग को टूटने नहीं देंगे। पंजाब की सोशल बॉन्डिंग इतनी मजबूत है, इसको तोड़ने की बहुत बार कोशिश की गई है दुश्मनों द्वारा, नहीं टूटेगी। उनकी कैलिफोर्निया पुलिस अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे मैं बता रहा हूँ, डिटेन किया उन्होंने संपर्क किया है भारत सरकार से, पंजाब पुलिस से कि जी हमने डिटेन कर लिया है, तो आप बताइए क्या इसका उसको डिपोर्ट करना है या उसकी वापसी करवानी है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी जो संधि है उसी के मुताबिक हम उसको लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे। और ताकि जिन परिवारों में उसने मतलब 70 बिछा दिए, जिन परिवारों में बेटे बेटियों की हत्याएं हो गई, उन परिवारों को थोड़ा सुकून मिल सके। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया से हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी को 20 नवंबर या इससे पहले ही डिटेन किया जा चुका है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कैलिफोर्निया पुलिस ने औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने भारतीय एजेंसियों से बातचीत की है। बताया ये भी जा रहा है कि गोल्डी को भारत भेजा जा सकता है। गोल्डी बराड़ के खिलाफ पहले ही 2 पुराने केसों में रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया जा चुका है। और इसी बीच अब पंजाब के CM भगवंत मान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इसको लेकर पुष्टि की है कि गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी बीच उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द भारत अमेरिका की जो संधि है उसके अकॉर्डिंग बातचीत करने के बाद गोल्डी बराड़ को वापस भारत लेकर आया जाएगा। ये भारत सरकार पर है कि भारत सरकार कैसे वापस लेकर आती है। इसी के साथ पंजाब के CM भगवंत मान ने पंजाब में गैंगस्टर और गन कल्चर को बढ़ावा देने का सीधा सीधा आरोप बीजेपी और कांग्रेस पर लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो गैंगस्टर हैं वो पनपे हैं बीजेपी के राज में और बढ़े हैं कांग्रेस के राज में। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इंद्रजीत सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, भरत सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ प्रीतपाल सिंह सलूजा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है NB न्यूज पर। सबसे पहले प्रीतपाल सलूजा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। भगवंत मान का ये बयान सामने आया है कि गिरफ्तार तो कर लिया गया है गोल्डी बराड़ को, लेकिन पंजाब में अगर बढ़ावा गैंगस्टर को दिया गया है तो वो बीजेपी और कांग्रेस के राज में दिया गया है। प्रीतपाल जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है। भरत सिंह जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, भगवंत मान का ये बयान सामने आया है। उन्होंने ये साफ कहा है कि कांग्रेस के राज में पंजाब में जो गैंगस्टर्स है उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। देखिए,
जिस तरह से भगवंत सिंह मान कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि भगवंत सिंह मान जी होश में थे कि नहीं थे। ये पता होना चाहिए भगवंत सिंह मान को कि 400 लोगों का जो है वहां पे वीवीआईपी लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का सुरक्षा वापस किसने लिया, जबकि ये जानते थे कि सिद्धू मूसेवाला की जान को खतरा है, और उन्होंने इसकी आशंका जताई थी। उसके बाद में भी उनका जो है सुरक्षा वापस लेना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कितनी विवेकहीन जो है वो सरकार हो गई है भगवंत सिंह मान जी का। और ऊपर से देखिए तुर्रा ये कि जो है कांग्रेस पार्टी के राज में जो है गैंगस्टरों को बढ़ावा मिला था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, कि आपने किसके कहने पे 400 लोगों का जो है वो सुरक्षा वापस लिया था? क्या गोल्डी बरार के कहने पे लिया था क्या? कि भाई गोल्डी बरार कितने दिनों से पीछे लगा था, ये सारा रिपोर्ट दिखाया गया। मैं तो स्वागत करता हूँ FBI का और कैलिफोर्निया पुलिस का कि जो है गोल्डी बरार जैसे अपराधी को जो है अरेस्ट किए हैं, और जल्द से जल्द भारत सरकार को उसे यहाँ पे लाना चाहिए, और ये उससे पता लगाना चाहिए कि इसके अंदर किसका हाथ है। इसके अंदर कहीं आप पार्टी का तो हाथ नहीं है, जो ये कह रही है आप पार्टी कि इसमें अकाली दल और भाजपा और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी, इनके राज में जो है ये आतंकवादी हो गए, चाहे गैंगस्टर हो गए, सबसे ज्यादा जो है बढ़ावा मिला है। तो सबसे ज्यादा बढ़ावा तो मुझे लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के राज में मिल रहा है। हमारे एक नेता का हत्या हो गया और उसके बाद में आम आदमी पार्टी जो है वो इल्जाम लगाती है कांग्रेस पार्टी पे, तो ये हास्यास्पद है। एक कॉमेडियन से हम और क्या आशा कर सकते हैं? ठीक है इंद्रजीत जी, बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं पंजाब में जब बीजेपी का राज था उस समय में गैंगस्टर्स को बढ़ावा दिया गया और गैंगस्टर्स उसी समय में पनपे थे, ये भगवंत सिंह मान का बयान है। और इसी के साथ गोल्डी बराड़ को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो अब जनता के मन में ये सवाल है कि भारत सरकार कब जो संधि है अमेरिका और भारत के बीच में उसके अकॉर्डिंग वापस लेके आएगी गोल्डी बराड़ को? देखिए, एक चीज मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहता हूँ। अभी अभी भाई साहब ने बोला सिक्योरिटी वापस ली, और जब ये एक तरीके से जब इन्होंने सीएम नहीं थे और तब बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम कोठी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम ये खर्चे बचाएंगे, वो आज जितने भी सीएम हुए हैं और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इस टाइम भगवंत मान ने खुद के पास रखी हुई है। अपने माँ को, बहन को, रिश्तेदारों को, सभी को दिया। अब सिक्योरिटी देखिए, जिस एक तो चलो मैं तो कुदरती कहता हूँ आज तक सिक्योरिटी वालों ने किसी को नहीं बचाया, क्योंकि इंदिरा जी की भी डेथ हुई है और भी लीडरों की डेथ हुई है, तो सिक्योरिटी वाले बेचारे अपने आप को बचाएंगे या अपने लीडर को बचाएंगे? अब रही की बात बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, मैं बीजेपी की तरफ से एक चीज वादा करता हूं, अगर गोल्डी बराड़ इसमें मूसेवाला के कत्ल का केस में है, उसका अगर हाथ है, तो उसको 100% वहां से लाया जाएगा, हर हालत में लाया जाएगा। और मैं एक भगवंत मान जी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो एक गैंगस्टर पकड़ा हुआ है इन्होंने, क्या बिश्नोई, आई थिंक तो, क्या नाम मुझे प्रॉपर नाम नहीं याद आ रहा, लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, आज तक उसके मुंह से ये तो कुछ कहलवा नहीं सके। उसने क्या किया है? उसकी कभी रिमांड इधर ले लेते हैं, कभी दूसरी जगह ले जाते हैं। उसको ऐसे वीआईपी सिक्योरिटी दे रखी है, अगर कहीं भी जाता है तो पूरा ऐसे होता है कि जैसे कि कोई प्रधानमंत्री आ रहा हो वहीं पे। ये तो इनके काम है यहाँ पे। उससे तो कुछ कहलवाया नहीं गया। इतनी दूर बैठा हुआ आदमी से भगवंत मान ने हलवा भी लिया कि मैंने मर्डर करवाया है, तो गोल्डी बराड़ ने मर्डर करवाया है। ठीक है प्रीतपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मुस्कान जी, आवाज आ रही है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर।
दोनों प्रवक्ताओं की आपने बातें सुनी है, भरत सिंह जी भी की और इंद्रजीत जी की भी। दोनों ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है, आखिर इंद्रजीत जी का कहना है कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी तो भगवंत मान के पास है, और आपके अभी जो पंजाब पुलिस के अंडर उनके कह सकते हैं कि गिरफ्त में जो है लॉरेंस बिश्नोई, उससे अभी तक कुछ भी उगलवा नहीं सकी है। तो आगे क्या, किस तरीके से आप इस पर काम करेंगे? और गोल्डी बराड़ को जिस तरीके से कहा गया है कि भारत लेकर आएंगे, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल मुस्कान जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं उनकी जो लाहट जो दिख रही है, जो दिल्ली के बाद पंजाब उनके हाथ से आम आदमी पार्टी ने छीना, और इस जगह पे भी एक मौत पे भी राजनीति कर रहे हैं चैनल के माध्यम से। मैं कई बार पीछे भी बता चुका हूँ, हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बताया, अरविंद केजरीवाल ने भी बताया, मैं भी कई बार आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ लोगों को, जो सिक्योरिटी थी इनकी वो नहीं हटाई गई थी, और इनको बकायदा बुलेट प्रूफ एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सरकार द्वारा मुहैया कराई हुई थी। मगर ये जब घर से निकले थे, ये अपने वाहन से निकले थे, ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। नहीं, सिक्योरिटी तो 400 लोगों की हटाई गई थी ना, कम की गई थी, आप ये मान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल कम की गई थी, 50% की गई थी। और आपको बताना चाहूंगा कि उस समय शायद इनको पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इंद्रजीत जी बैठे हैं और भरत जी बैठे हुए हैं, इनकी सरकारों में भी जब वहाँ पे घल्लूघारा होता है, घल्लूघारा में पुलिस पंजाब की कम पड़ती है, चाहे इनकी सरकार हो, बादल की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, उन दिनों में जितने भी वीआईपीज हैं उनके पास से 50% सिक्योरिटी, ये प्रोटोकॉल है, ये हमारा प्रोटोकॉल नहीं था, इनका प्रोटोकॉल पहले से चला रहा है, वो कम किया जाता रहा है। और रही बात सिद्धू मूसे जी के साथ, सिद्धू मूसे को बाकायदा सिक्योरिटी मिली हुई थी, फॉर्च्यूनर बुलेट प्रूफ मिली हुई थी। एक बहुत बड़ी मतलब पहली घाट है पंजाब के लिए कि इतना बड़ा कलाकार जो हमारे हाथ से चला गया। अब आई है बात उसकी, जो मुलजिम है जिन्होंने उसकी हत्या की या करवाई, उनको पकड़वाने हमारी के बाद सरकार सुरक्षा जानती है किसको देना और किसको नहीं देना है। इंद्रजीत सिंह जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री सिक्योरिटी बहुत लिए हुए, माँ को भी सिक्योरिटी दे रखी है और पिता को भी सिक्योरिटी दे रखी है, पता क्या क्या। तो इनको शायद जानकारी नहीं है देश के जो प्रधानमंत्री, जब तो मिलनी चाहिए, मैं उस पर कोई दंश नहीं कस रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर प्रतिदिन 3.5 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी देश के टैक्स पेयर के पैसे से लगती है, जो लगनी भी चाहिए। तो देश का प्रधानमंत्री है तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसी तरह वो पंजाब का मुख्यमंत्री है, और एक कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनके भाषा से उनको शायद ये नहीं पता कि उनके भी मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। अगर वो पंजाब में रहते हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और देश के, अरे भाई पंजाब के मुख्यमंत्री का ही वीडियो चलता है कि दारू पी के टल्ली हुआ करते हैं, ये पंजाब के मुख्यमंत्री जी का ही चलता है। पंजाब के मुख्यमंत्री जी का ये चलता है कि वो प्लेन में जब चढ़ते हैं तो प्लेन के अंदर भी टल्ली होके जो है चढ़ते हैं। ये पंजाब के मुख्यमंत्री ही है ना, मैं थोड़ी नहीं कहता हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो फ्लाइट में चढ़ते हैं तो दारू पी के चढ़ते हैं, दारू पी के जो वो जो है उनका वीडियो सर्कुलेट होता है कि वो दारू पी के झूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी इनके हाथ से जाने वाला है। अरे भाई मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, झूम बराबर झूम शराबी कौन करता है भाई, आपके जो है मुख्यमंत्री ही करते हैं ना। केजरीवाल ने किया, जो 5 साल का कुशासन था, जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ के कांग्रेस के जो कैप्टन थे वो सरकार चला रहे थे, 4.5 साल चलाई, फिर चन्नी ने 6 महीने चलाई। उस कुशासन को भी खत्म करने का काम किया भगवंत मान ने, हमारी अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने। तो ये झंझलाहट में कुछ भी बोल जाते हैं, इनको पता नहीं है कि भगवंत मान। लेकिन इंद्रजीत जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि भगवंत मान ही तो थे ये कहने वाले कि हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। नहीं, आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने उनको जोकर कहा, एक मुख्यमंत्री को जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है। कांग्रेस 135 वर्ष पुरानी है, ये महात्मा गांधी की पार्टी की कांग्रेस है, लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस है, नेहरू जी की कांग्रेस है। सभ्यता शायद इनको नहीं पता, ये कांग्रेस के से आते हैं, इनको सभ्यता होनी चाहिए कि बोलना क्या है। एक मुख्यमंत्री के बारे में, चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में इन्होंने जोकर कहा आपके चैनल पे। ये उम्मीद तभी की जा सकती है कि आम आदमी पार्टी ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। चलिए अब आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता कॉमेडियन थे कि नहीं ये बताइए ना, हम थोड़ी नहीं कह रहे हैं, ये तो पूरा देश जानता है ना कि भगवंत मान जी कॉमेडियन थे। ये गृह मंत्री बनाते हैं, अमित शाह इनके हैं, बात भी करते हैं तो कॉमेडियन जैसे। प्रोटोकॉल वहां से बनता है, उस प्रोटोकॉल के तहत उनको सुरक्षा मिली हुई है। देश के प्रधानमंत्री को भी मिली हुई है, गृह मंत्री को भी मिली हुई है, बाकी मंत्री को भी मिली हुई है। रही बात आज हमारा विषय है कि जो गोल्डी बराड़ को जो वहां पकड़ा गया, इसकी शुरुआत जून में ही भगवंत मान की सरकार ने
जो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो एजेंसी जो है सीबीआई, उसको भेज दिया था जून में ही कि इसके लिए एक वैश्विक वारंट जारी किया जाए। उन्होंने तुरंत इसके ऊपर रेड कार्ड में नोटिस वापिस कैसे लेके आएंगे आप गोल्डी बराड़ को? बिल्कुल आएंगे। ये हमारे कैसे? मित्र देश ने पकड़ा भगवान है। मान जी लाएंगे। मित्र देश हमारे हैं, मित्र देश ने पकड़ा है, गृह मंत्रालय से बात रखी, क्योंकि ये गृह मंत्री हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और भगवंत मान जी लेके आएंगे लेने के लिए। शायद इनको ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता होगा, ना ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता मूर्ख बैठे हुए इनको भी नहीं पता होगा इस बात का। व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए सलूजा साहब। आपको पता होगा सलूजा जी, आपको पता होगा कि आप कितने जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप कितने विद्वान है, तो मुस्कान जी भी जानती है। चैनल आपका है, राष्ट्रीय चैनल के ऊपर उन्होंने मुख्यमंत्री जो पंजाब के भगवंत मान मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनको जोकर कहा। तब आप ये मुझे कहिए, आप बताइए मुझे कि कॉमेडियन जोकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जोकर ने कहा, मैंने कहा कि कॉमेडियन। उन्होंने मुख्यमंत्री चुने हुए मुख्यमंत्री को जोकर कहा। अरे भाई ये तो आप बना रहे हैं ना अपनी तरफ से बात। ये तो आप कांग्रेस की झुंझलाहट दिख रही है। चलिए ठीक है, जनता अब इनको छत्तीसगढ़ से भी भगाएगी और राजस्थान से भी भगाएगी। ठीक है। अब देश से बाहर हो चुकी पार्टी नहीं, वो है, तो ठीक है भरत जी, सलूजा साहब, ठीक है, मैं आऊंगी एक बार फिर से आप दोनों के पास। ठीक है इंद्रजीत जी, अब केंद्र सरकार के ऊपर ये दारोमदार है कि अगर उसको हिरासत में ले लिया गया है गोल्डी बराड़ को, तो उसको वापस से लेकर आया जाए भारत। और ये तो आरोप देखिए किस तरीके से लगे गए हैं कि कितने ही लोग हैं, कितने ही आरोपी हैं जो इस तरीके से हत्याएं करने के बाद फौरन भाग जाते हैं, विदेशों में भाग जाते हैं। उनको वापस लाने की सबसे बड़ी चुनौती होती है, किस तरीके से लेकर आएंगे आप? और अब तो अमेरिका जैसा देश है। देखिए, अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के रिलेशंस मोदी जी ने बहुत अच्छे किए हैं और अब अमेरिका बिल्कुल हमारा साथ देगा और इंडिया भी अमेरिका का साथ दे रहा है। तो ये अगर वो गिल्टी है बंदा तो उसको 100% लेके आएगा। पर मैं यही दोबारा से कहता हूँ कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरा साथ देगी, क्योंकि जो स्टेट है उसके भी हद होती है, उसके बाद जो हद शुरू होती है वो सेंटर की आ जाती है। तो उसमें पूरा बीजेपी साथ देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कि ये नहीं कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और पूरी हेल्प नहीं करेगी। बाकी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने जो अगर सीएम साहब को क्या कहा था, जोकर कहा था, जोकर नहीं कहा मैंने, कॉमेडी लेना चाहिए। बेसिकली वो जोकर नहीं है, कॉमेडियन है। उन्होंने कॉमेडियन ही कहा था, जोकर नहीं कहा था। वो बातों को घुमाया फिराया जा रहा है, वो आपकी अब जिस तरीके से बातों को घुमाए फिराएंगे तो वो तो अलग बात है। उन्होंने कॉमेडियन ही कहा था। मैं वही कहना चाहता हूँ मुस्कान जी, अगर आपके पीसीआर में बैठे हो वो ऑडियो निकाले, मेरे पास सारी चीज रिकॉर्ड होती है। अगर आप पीसीआर में इनकी रिकॉर्डिंग निकालेंगे तो उन्होंने शब्द जोकर का भी इस्तेमाल किया। तो इसमें देखिए, ये जो है ये हिंदुस्तान के लिए है। ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे लोगों को जो कि यहाँ पे हत्याएं करवा रहे हैं और ऐसे बाहर बैठ के कर रहे हैं, उनको लाकर यहाँ पे उनको सजा देनी चाहिए। मैं इसके हक में पूरा हूँ। सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश से भाग गए हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक उनका वापस नहीं लेकर आ पाई है। खैर, अब बात एक बार फिर से करते हैं भरत सिंह जी। जी देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मैं आप पार्टी के प्रवक्ता से कह दूं कि भाई मैंने जोकर होकर नहीं कहा था, मैंने शुद्ध रूप से कॉमेडियन कहा था, क्योंकि वो कॉमेडी करते थे। मैंने बहुत बार टीवी पे देखा और बहुत अच्छा लगता था मुझे, उनका जो कॉमेडी था मुझे बहुत अच्छा लगता था। और ये भी अच्छा लगता है कि एक देश का कॉमेडियन भी इस देश में जो है मुख्यमंत्री बन सकता है। ये हमारे देश का बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के माध्यम से जो मुख्यमंत्री बनता है, कॉमेडियन भी बन सकता है। अगर इसमें आपको बुरा लगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो जो 2-4 ऐसे मैंने वीडियो देखा मुख्यमंत्री बनने के बाद। ठीक है, मुख्यमंत्री पर बात नहीं करेंगे, व्यक्तिगत मत जाइए ना भरत जी, वापस मुद्दे पर। ठीक है, नहीं मैं उनको बुरा लगा, मैं इसलिए बोला था, नहीं तो मैं उनके दिल को नहीं दुखाना चाह रहा था। वैसे भी उनका दिल दुखा हुआ है, गुजरात में उनको जो है मुश्किल से एक आध सीट भी नहीं मिल रही, तो वो ज्यादा इस समय फ्रस्ट्रेट है। मैं आगे ये कह रहा था कि अगर वहाँ पे FBI ने अरेस्ट कर लिया है तो ये केंद्र की सरकार, जो हमारे गृह मंत्रालय है, गृह खाता है, इन्हें तुरंत फौरन इस पे तत्काल प्रभाव से वहाँ पे बात करना चाहिए, वहाँ जो है अमेरिका से, कि किस तरह से उनको लाया जाए। आपने सही कहा कि बहुत सारे लोगों
लोग अभी भी अमेरिका में जो है बहुत लोग जो है फ्रॉड करके पड़े हैं, तो उनको लाया नहीं गया। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक जो है अपराधी वहां पे वो छूट जाए, क्योंकि यहाँ पे देख ही रहे हो कि बिश्नोई को किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को अभी यहाँ पे अरेस्ट करने के बाद में भी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। उनके ऊपर तो उल्टा और पैसे खर्चे हो रहे हैं, तो सरकार जो है वो खर्चा कर रही है इनकी सरकार। ठीक है भरत जी, ठीक है, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में लगातार गैंगस्टर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और गन कल्चर, जिस तरीके से गन कल्चर को बढ़ावा मिला है, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखना होगा कि पंजाब की सरकार किस तरीके से इन तमाम चीजों पर एक बार फिर से कंट्रोल कर पाती है और साथ ही साथ गोल्डी बराड़ जो कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया है, उसको किस तरीके से पंजाब की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर वापस लेकर आ पाते हैं, ये देखना सबसे अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।